Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 11 Commerce OCM we will be continuing with our chapter number 4, that is communication, e-commerce and outsourcing. Already we have revised up to the midway of the chapter. Let us recap what we have learned till now. Okay, we started with the communication and process of communication. We discussed in the previous video also that communication and process of communication we have to revise from chapter number 1 of CC. SPCC CC part chapter number 1. Okay. After that we will learn about internet and network. What is internet? What is network? Then with self study we have learned about how to search information. Although it is not necessary nowadays to learn how to search information, because every one of us knows how to search information on internet using Google or using any other search platform. And then in the last class we learned about e-commerce. What is e-commerce? Any business done electronically with the help of electronic gadgets is known as e-commerce. Then you learned about the most important scope of e-commerce. In that scope of e-commerce, we discussed about 4 main fields: B2B, B2C, C2C, C2B. Okay, and then we learned about the tools required for e-commerce. That is internet website, internet computer with internet connectivity, and your digital cash for payment. Okay, moving forward, today we will be discussing 3 topics, that is online transaction from the point of view of business and from the point of view of customer, mode of payment, and safety and security of transaction. Okay, talking about the first topic, that is online transaction. Now talking about online transaction, the online transaction is seen from 2 sides, that is from business POW means point of view. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को हम 2 तरीके से देखेंगे, एक बिजनेस के नजरिए से, एक कस्टमर के नजरिए से. So that is business point of view and customer point of view. If we talk about business point of view, बिजनेस के नजरिए से देखें तो सबसे पहले ऑनलाइन in both the cases 3-step process. Online transaction is a 3-step process. Business point of view and customer, in both the cases 3-step process it is. अगर हम बिजनेस के नजरिए से देखें तो पहला स्टेज आता है हमारा प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज. फर्स्ट स्टेज जो हमारा आता है दैट इज प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज. प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज में क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट करना, इंफॉर्मेशन देना. ओके, ऑल दिस. सेकंड इज कंडीशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. अगर सेलर की तरफ से, बिजनेस की तरफ से कोई कंडीशन है बायर के लिए, या सेलर को कंडीशन खुद की तरफ से रखना चाहता है, तो दैट इज कंडीशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. एंड लास्ट वन इज ऑब्वियस बात है कि ई कॉमर्स है तो फेस टू फेस ट्रांजेक्शन, फेस टू फेस 1-to-1 एक्सचेंज नहीं हो रहा, ऑनलाइनाइजेशन हो रहा है, तो चांसेस है कि सब फार अवे होंगे. तो थर्ड स्टेज इज डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट. डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट. क्लियर? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखा तो 3 स्टेज है. पहला स्टेज है प्री बाइंग एंड सेलिंग, एडवर्टीजमेंट करना, इंफॉर्मेशन देना. सेकंड है कंडीशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. दोनों बायर और सेलर एक दूसरे से अपनी कंडीशन से सॉर्ट आउट करते हैं, कंडीशन बताते हैं बाइंग की एंड सेलिंग की. एंड थर्ड वन इज डिलीवरी ऑफ गुड्स अगेंस्ट द पेमेंट. पेमेंट करना है, गुड्स की डिलीवरी करना. ओके, नाउ सीइंग फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. कस्टमर जब भी कोई ऑनलाइन परचेज करता है या ई कॉमर्स में जाएगा तो सबसे पहले उसके लिए आता है रजिस्ट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल हम अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे शॉपिंग पोर्टल से ही परचेज करते हैं तो हमें उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. सेम वे रजिस्ट्रेशन कैन बी फॉर द वेबसाइट ऑफ द सेलर और एनीवेयर फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू परचेज. द फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन. सेकेंड स्टेप जो कस्टमर को करना होता है दैट इज प्लेस एंड ऑर्डर. जो चॉइस है हमारी, जो हम प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं उसके लिए हमें ऑर्डर प्लेस करना. सेकेंड स्टेप इज प्लेस एंड ऑर्डर. एंड थर्ड स्टेप इज अगेन कस्टमर के लिए फाइनल स्टेज क्या होता है? पेमेंट, डूइंग एंड पेमेंट. Okay, so from business point of view देखें तो pre buying and selling, advertisement and information.
कंडीशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रजिस्ट्रेशन, प्लेस एन ऑर्डर एंड पेमेंट। ओके, तो कहीं ना कहीं दोनों सिचुएशन में डील कहां क्लोज होती है? एट पेमेंट स्टेज। सो दिस इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, दिस इज स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट मोड ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोड ऑफ पेमेंट। ई कॉमर्स की बात करें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करें तो द टाइम व्हेन ई कॉमर्स वाज इम्प्लीमेंटेड, या जब ई कॉमर्स या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुए थे या ट्रेंड्स में आए थे उससे पहले के टाइम पे, एट दैट टाइम 5 मोड ऑफ पेमेंट वर एक्सेप्टेड। उस टाइम पे 5 मोड ऑफ पेमेंट ऐसे थे जो एक्सेप्ट किए जाते थे। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दोस 5 मोड्स। फर्स्ट जो था हमारा, दैट इज एवरीवन नोज COD। COD मीन्स कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि सपोज कोई बायर ने ऑर्डर प्लेस किया सेलर के थ्रू, तो सेलर जब गुड्स डिलीवर कराएगा और जब गुड्स डिलीवर होंगे तो जो डिलीवरी बॉय आएगा, जो डिलीवर करने आएगा, उसको डिलीवरी के अगेंस्ट में बायर कैश पे करेगा। दैट इज नोन एज कैश ऑन डिलीवरी। दैट इज नोन एज कैश ऑन डिलीवरी। सेकेंड मोड ऑफ पेमेंट जो आजकल इतना पॉपुलर नहीं है, दैट इज चेक। जब भी हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, हमें सिर्फ अमेजन या फ्लिपकार्ट या सिर्फ शॉपिंग पोर्टल का दिमाग में नहीं आना चाहिए। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिजनेसेस से बिजनेसेस के बीच में भी होते हैं, बल्क में भी होते हैं, लमसम अमाउंट और मोर अमाउंट और ह्यूज अमाउंट के लिए भी होते हैं। तो जब ह्यूज अमाउंट या बिजनेस टू बिजनेस होते हैं तो एक चेक फॉर्म ऑफ मोड ऑफ पेमेंट भी पॉपुलर था अर्ली टाइम में, जब नेट बैंकिंग या ई बैंकिंग इतना इवॉल्व नहीं हुआ था। ओके, थर्ड स्टेज इज नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग मीन्स यूजिंग इंटरनेट एज अ मीडियम, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट सिटिंग एट योर होम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ओके, दैट इज नेट बैंकिंग। हमारे बैंक अकाउंट को हम इंटरनेट की यूज से ऑपरेट करके ट्रांसफर कर रहे हैं फंड्स का, इट कम्स अंडर नेट बैंकिंग। इट कम्स अंडर नेट बैंकिंग। फोर्थ वन इज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। मीन्स पेइंग थ्रू द कार्ड्स का नंबर एंटर करके, पिन कोड, सीवीवी नंबर एंटर करके, डिटेल्स एंटर करके, यूजिंग कार्ड इज अ मोड ऑफ पेमेंट करना। सो COD, कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एंड लास्ट वन इज which is nowadays used more, that is डिजिटल कैश। दैट इज डिजिटल कैश। डिजिटल कैश के अंदर हम यूपीआई को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो वॉलेट सिस्टम हम यूज करते हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इनके जो वॉलेट सिस्टम अगर वो यूज करते हैं, दैट ऑल कम्स इनटू द डिजिटल कैश सेक्शन। सो 5 मोड्स ऑफ पेमेंट आर कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, and digital cash. So this was the mode of payment. And coming to the last topic of today, that is safety and security of transaction. इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क करके चलते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर से। नॉट टॉकिंग अबाउट सेफ्टी और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। जब भी कोई न्यू कमर या जब भी कोई इंटरनेट ट्रांजेक्शन करने जाता है या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ई कॉमर्स में ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक डर रहता है ऑफ रिस्क ऑफ एनी का हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारे पैसे कहीं ना चल जाए, हमारे रुपीज को हार्म हो जाए, हमारे बैंक अकाउंट को। सो कितना टाइप के सिक्योरिटीज, कितने टाइप की सेफ्टी हमें रखनी पड़ती है, कितने टाइप के रिस्क हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड with the transaction, with the online transaction. First one is security against risk of transaction. Risk of transaction means हमने ऑर्डर प्लेस किया लेकिन ऑर्डर प्लेस हुआ ही नहीं। हमने एड्रेस कुछ इनपुट किया था, कोई और इनपुट पे एड्रेस प्लेस हो गया, हमने जो डिटेल एंटर करी थी उस डिटेल पे ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। तो जनरली ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो रिस्क है, हमने जो ट्रांजेक्शन करना चाहा वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, जो हमने ऑर्डर प्लेस करना चाहा वो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। सो ऑल दैट इज नोन एज रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑल दैट इज नोन एज रिस्क ऑफ
ट्रांजेक्शन. ओके, ऑर्डर किया, गुड्स रिसीव नहीं हुए, गुड्स प्रॉपरली रिसीव नहीं हुए, जो क्वालिटी बताई थी उस क्वालिटी के रिसीव नहीं हुए. सो ऑल दिस इज रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन. ऑल दिस इज रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन मीन्स जो डेटा हमने इनपुट किया है उस कलेक्शन वो कोई और कलेक्शन ना हो गया हो. दैट मीन्स जो वायरस के अगर कारण या कोई ऐसा एक टर्म है इसके अंदर फिशिंग. Okay. So we got a question for today's comment section. You have to answer in comment box today that what do you mean by phishing. Search it on Google. You will get to know what is phishing. If you are not able to understand what is phishing, ask in the comment section only. So your comment question for today. बहुत दिनों के बाद हम comment question कर रहे हैं. The comment question for today is phishing. What do you mean by phishing? ओके, तो सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन है कि हम जो भी डेटा एंटर कर रहे हैं वो किसी वायरस के कारण मिसप्लेस हो जाता है, किसी और तक पहुंच सकता है. ओके, सो दैट इज रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन. फॉर दैट वी नीड टू यूज एंटीवायरस एवरी टाइम व्हेन वी आर यूजिंग इंटरनेट. सो यूज एंटीवायरस टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन. एंड लास्ट वन इज सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी मीन्स हमारी खुद की पर्सनल डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, फोन एड्रेस ऑफ द होम या और कोई डिटेल्स हमने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पिन एंटर करी हो, पासवर्ड एंटर करे हो, तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी. फिशिंग इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस. सो ये तीन रिस्क है हमारे अगेंस्ट में. रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन, रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन एंड रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी. Okay, so today we have learned about how हमने क्या देखा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मोड ऑफ पेमेंट एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन. इन द नेक्स्ट एंड अपकमिंग वीडियोस we will be learning about the last main topic of this chapter, that is outsourcing. आउटसोर्सिंग के दो पार्ट है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. वो हम आगे आने वाले दो पार्ट के वीडियोस में देखेंगे. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव taught or what we have learned today and revise at home properly. Till then, stay home, stay safe, happy learning.